हेलो। हेलो। मेरे को फॉरवर्ड करना है क्या? बाप रे बाप। अरे ये कहाँ पे आएगा पार्टिसिपेंट? अरे छोड़, उसको बुलाना। एक मिनट बेटा। अरे ये मेरे को भेजना है मैसेज। दो क्लास। अरे बेटा ये 11th बी को भेज मैसेज। 11th बी सर्च करो। हाँ मिस। हाँ। अरे वो गलती से भेज दिया होगा, आप डिलीट कर दो मिस। वो 11th। अरे 11th एफ का मिस लिंक नहीं गया तो 11th एफ में भेज दो प्लीज आज। ओके मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ।
अरे निरुपमा में हेलो हेलो यस सर। मिस आप है ना सब जगह देखो लिंक चला गया कि नहीं चला गया। मिस हेलो निरुपमा मिस सब जगह लिंक गया कि नहीं गया जरा चेक करो एक बार। शेयरिंग देखो मिस। Yeah, students. Hello. Hi, students. Just wait. We will start in few moments. Yeah, student. It is time now, but kindly join on time. Still, your friends are joining. गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon, बच्चे. Mute yourself. सर सॉरी आई हैव जॉइनिंग लेट। आई एम सॉरी सर आई हैव जॉइनिंग लेट सॉरी। Sir, nobody is not joining. Joining. Your friends are still joining. ठीक है, sir will look after it. Okay, you do not have to unmute yourself. Keep your mic muted. Only 54 participants are there. Nice. Students, there will be a delay of 5 minutes today because your friends have not joined still. Yeah, last lecture what we have did, can anyone tell me the meaning of goats? I'm sorry, sir. I'm not in last lecture. That's why. It was before in the first lecture. Oh, sir. What is the meaning of goats? Yeah, tell me. Meaning of goats. What is the meaning of debtors? Hello.
Yes, tell me. Sir, can I tell meaning of goods? Tell beta, tell what is the meaning of goods? Goods are commodities which the trader use in trade, in selling or buying. Commodity or article in which the trader deals in. Commodity or article in which the businessman deals in. Okay. Then what is the meaning of debtors, बच्चे? Debtors का मतलब anyone, some other. Sachin, Seni, Tiwari, Hariyo. हाँ, tell, unmute yourself. One at a time. A person who has to pay to the business for getting goods and services on credit is known as debtor. Debtor. And what is the meaning of creditor, बच्चे? A person to whom business has to pay for getting goods or services. Very good. Then some other person. Now some other person. What is the meaning of asset? What is the meaning of asset? Priyanka miss, are you there? Sheryl miss, are you there? Yes, sir. Priyanka ma'am is here. Sheryl ma'am has network issues, so Okay. she is not मिस able to join. एक बार चेक कर लो ना कि सबको 11 पे सबको लिंक गया क्या, एक बार बस ये चेक कर लो. सर देखा, सारे डिवीजन में लिंक आया हुआ है. तो मैं लेक्चर चालू करूं फिर? सर आप ट्राई कर सकते हो. आज बहुत नेटवर्क इश्यूज के प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो मे भी बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं. हाँ, ओनली 67 जनरली 100 से ऊपर होते हैं. हाँ, 67 ही हैं. तो मैं चालू करता हूँ. Let's check if students join in between. Okay, sir. You can start with your तो lecture. अगर स्टूडेंट चालू करेंगे तो फिर मैं उनको एडमिट ही करूंगा, तो देयर विल बी सम डिस्टर्बेंस. ओके, चलो बच्चों अपन चालू करते हैं. Sir, in between you can just check. Okay. Between you can just check Okay. for admit all, and then you can start with it. ओके मैम, थैंक यू मैम. अच्छा, लास्ट लेक्चर में बच्चों अपन ने लास्ट में गुडविल का मतलब देखा था. किसका मतलब देखा था? गुडविल का मतलब देखा था. आज अपन क्या करते हैं? इनकम का मतलब देखेंगे. किसका मतलब देखेंगे? इनकम का मतलब. बच्चों, इनकम क्या होती है? एम आई ऑडिबल टू ऑल? Yes, sir. ओके, वेरी गुड. अच्छा, इनकम क्या होती है? ये देखिए, पहले मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ. जैसे कोई ऑटोमोबाइल वाला है, स्कूटर बेचने वाला है, तो स्कूटर बेच करके उसको जो भी पैसा मिलता है उसको अपन क्या बोलते हैं? इनकम बोलते हैं. इलेक्ट्रिक वाला है तो इलेक्ट्रिक गुड जैसे आयरन है, पंखे हैं, ट्यूबलाइट है, ये बेच के जो भी पैसा मिलता है उसको इनकम बोलते हैं. तो इनकम का मतलब क्या हो बच्चों? इट इज द just a minute. It is the revenue arising as a result of business transaction. Business transaction से जो भी अपने को पैसा मिलता है उसको क्या बोलते हैं? इनकम बोलते हैं. एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विस. जैसे कोई सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करने वाला है तो सॉफ्टवेयर डेवलप करके उसको जो भी मिलता है, पैसा मिलता है सॉफ्टवेयर डेवलप करके, उसको क्या बोलेंगे अपन? इनकम बोलेंगे. ठीक है ना? अच्छा, इनकम का एक और मतलब होता है, जैसे मिसलिनियस रिसीप्ट होती है ना, जैसे किसी बिजनेस में रेंट की रिसीप्ट होती है, इंटरेस्ट की रिसीप्ट होती है, कमीशन की रिसीप्ट होती है, तो इन सब को भी इनकम कहा जाता है. तो इनकम का मतलब अपन को जो रेवेन्यू बिजनेस ट्रांजेक्शन से मिलता है, गुड्स बेचने से या सर्विस प्रोवाइड करने से, उसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों? इनकम बोलते हैं. देखो, जनरली इनकम और प्रॉफिट में तो अपन एक ही बात समझते हैं, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम. देयर इज अ डिफरेंस. प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? अगर आपके खर्चों से आपकी इनकम ज्यादा है, इफ योर इनकम एक्सीड योर एक्सपेंडिचर इन एनी अकाउंटिंग ईयर. अकाउंटिंग ईयर का मतलब मैं समझा चुका हूं. अगर इफ इनकम इज मोर देन एक्सपेंसेस, देन इट इज नोन एज प्रॉफिट. अगर खर्चों से आपकी इनकम ज्यादा है, और इनकम का मतलब क्या होता है? सामान बेचने से जो आपको पैसा मिलता है उसको इनकम बोलते हैं. ठीक है बच्चों? अब लॉस क्या होता है? लॉस, अगर आपका खर्चा इनकम से ज्यादा है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम, इट इज नोन एज एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस. अगर खर्चा ज्यादा है आपके इनकम से तो इट इज लॉस. ठीक है? एग्जाम्पल दे रखा है, आपने गुड्स बेचा
1,20,000 का और आपके खर्चे 2 लाख रुपए के हैं, तो आपको लॉस होगा। आपकी जो इनकम है वो आपके खर्चों से ज्यादा है, आपके एक्सपेंडिचर आपके इनकम से ज्यादा है, तो इट इज अ लॉस। एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम। समझ में आया बच्चों? अब ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? बेसिकली डिस्काउंट अपन आजकल तो शॉपिंग फेस्टिवल सीजन चल रहा है, शॉपिंग का सीजन चल रहा है, तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? इट इज अ कंसेशन और अलाउंस। आपको कोई रिबेट मिलती है सेलर से, इफ यू गेट अ अलाउंस और कंसेशन फ्रॉम द सेलर, तो इसको अपन डिस्काउंट बोलते हैं। इट इज द कंसेशन और अलाउंस रिसीव्ड बाय द बायर फ्रॉम द सेलर, इसको अपन डिस्काउंट बोलते हैं। When the customer is allowed a reduction in prices of goods, it is known as discount. So any concession or allowance received by the buyer from the seller, या अपन ऐसे भी कह सकते हैं given by the seller to the buyer, it is known as discount. समझ में आया बच्चों? चाहे अगर समझ में आया तो चैट बॉक्स में टाइप करो। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? क्या किसी बच्चे ने टाइप नहीं किया चैट बॉक्स में? यस यस, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, अब डिस्काउंट बच्चों 2 तरह के होते हैं। डिस्काउंट कितने तरह के होते हैं बच्चों? डिस्काउंट 2 तरह के होते हैं। एक मिनट बच्चों, 1 सेकेंड। हेलो हेलो, कौन? नहीं, सॉरी। या डिस्काउंट मैंने बोला बच्चों 2 तरह के होते हैं। अभी भी बच्चे एडमिट हो रहे हैं आपके दो। प्लीज ज्वाइन ऑन टाइम बच्चों, प्लीज ज्वाइन ऑन टाइम, नहीं तो मैं आप लोगों को एडमिट ही करता रहूंगा, अपना लेक्चर नहीं हो पाएगा। अभी भी देखो आपके दोस्त लोग ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज आप टाइम से पहले ज्वाइन करिए। अब आपको क्या होगा, कल से या मंडे ऑनवर्ड आपको लेट एडमिट नहीं अलाउ करा जाएगा, फिर आपका लेक्चर छूटेगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी भी आपके दोस्त लोग एडमिट हो रहे हैं, मैं आपको एडमिट ही करता रहूंगा या पढ़ाऊंगा भी। नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो बता सकती है चार्ट करके ना मुझे। सर आवाज नहीं आ रहा है। सर आप म्यूट हो। शिवानी तू है, लेक्चर अटेंड कर रही है? हाँ मैं हूँ। सर आप म्यूट हो, आपका आवाज नहीं आ रहा है। ठीक हो गया। अब आया। अब मैं पार्टिसिपेंट को अलाउ नहीं। ओके, अब आया कि नहीं? यस सर। अब मैं पार्टिसिपेंट को अलाउ नहीं कर रहा हूँ और अपन पढ़ाई करते हैं। अपना डिस्काउंट का मतलब समझा था बच्चों। डिस्काउंट इज द कंसेशन और अलाउंस गिवन बाय द सेलर टू द बायर। ये क्या होता है? कुछ कंसेशन या रिबेट दिया जाता है। ये 2 तरह का होता है, ट्रेड डिस्काउंट या फिर
कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, या फिर ये देखो इस तरह की बदतमीजी मत करो बच्चे लोगों, तुम स्क्रीन पे ये सब मत करो, नहीं तो तुम्हारा नुकसान है, मेरा कुछ नहीं जा रहा है। समझ में आया ना? आप लोग बिहेव करिए, स्क्रीन को खराब मत करिए। देखिए, अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट बच्चों दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, मैं एग्जांपल से समझाता हूं। आप बाजार में कोई भी चीज लेने जाते हैं, पार्ले, देखिए आप अपने आप को अनम्यूट मत करिए, म्यूट रखिए, आप प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए। देखिए आप लोग लेक्चर खराब मत करिए। देखिए फिर अभी तक बच्चे एडमिट हो रहे हैं, ओके, आई एम नॉट अलाउइंग देम। ओके, ट्रेड डिस्काउंट एग्जाम्पल लिया था अपन ने ट्रेड डिस्काउंट का। आप पार्ले बिस्कुट का पैकेट खरीदने गए, पार्ले बिस्कुट का पैकेट खरीदने गए तो उसके ऊपर प्राइस छपी है 100 रुपया, लेकिन जो आपका रिटेलर है जो आपके घर के पास बेचता है, वो पार्ले कंपनी से जो बिस्कुट का पैकेट खरीदता है वो 90 रुपए में खरीदता है, 90 रुपए में खरीदता है और आपको प्रिंटेड प्राइस पे बेचता है। तो ये जो प्रिंटेड प्राइस होती है इसको बोलते हैं मार्क प्राइस। क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? प्लीज म्यूट, कोई अपने आप को अनम्यूट नहीं करे प्लीज। ये कौन बात कर रहा है बच्चों? अच्छा, प्लीज आप अपने आप को म्यूट रखें, बात नहीं करें। या अभी भी आपके दोस्त लोग एडमिट हो रहे हैं, प्लीज एडमिट, गेट योरसेल्फ एडमिटेड बिफोर टाइम, लेक्चर डिस्टर्ब होता है। अच्छा, वो मैंने पार्ले बिस्कुट का एग्जांपल दिया था, आपके दोस्त ने आपके दुकान के पास में दुकानदार ने आपको 100 रुपए में बेचा, तो प्लीज अच्छा, तो आपको प्रिंटेड प्राइस कितनी है? 100 रुपया, और दुकानदार ने कितने में खरीदा होगा? 90 रुपए में। तो दुकान जो आपका रिटेलर है वो होलसेलर से मार्क प्राइस से सस्ते में खरीदता है, तभी वो आपको 100 रुपए में बेच पाता है मार्क प्राइस पे। ट्रेड डिस्काउंट का बच्चों बात मत करो इस तरह से, ये डिस्टर्बेंस। Is any teacher there? बच्चों प्लीज आप लोग अपने आप को अब कोई अपने आप को म्यूट नहीं कर सकेगा। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? यस सर। आ रही है ना? ठीक है, वेरी गुड। अब मैंने सबको म्यूट कर दिया है। एनीवन विल नॉट बी एबल टू अनम्यूट हिमसेल्फ। आप लोग बेनिफिट का अनड्यू एडवांटेज उठाते हो। इतने अच्छे अपने लेक्चर चल रहे थे, आप लोग सब बिगाड़ दिया। अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब मैंने आपको समझाया, जो प्रोडक्ट के ऊपर छपी हुई प्राइस होती है उसको बोलते हैं मार्क प्राइस। अगर आपका शॉपकीपर रिटेलर अगर वो मार्क प्राइस पे खरीदेगा तो प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा। अरे हेलो मीत, मस्त पहला कांटेक्ट पब्लिक एक बार मेरे साथ भी खेल लेना आ जाओ। अरे ये कौन है यार, ये कौन बात बीच में बोल रहा है? तो इसका नेटवर्क चला गया ना, तो तू इसको पेल देगा। मेरे को पता है, मैं बोला इसको, मेरा एक बार नेटवर्क तो एक ऑब्जर्वेटरी में
प्लीज आप लोग बच्चों लोगों आप लोग बात ना करें। तो देखो, इट इज द अमाउंट डिडक्टेड बाय द सेलर फ्रॉम द लिस्ट प्राइस और मार्क प्राइस एट द टाइम ऑफ सेल। तो जो सेलर है बेचते वक्त जो मार्क प्राइस है उससे कम में बेचता है, उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। ये क्या काम करता है ट्रेड डिस्काउंट? ये इट हेल्प्स द रिटेलर। काकी देखते हो सकता है यार, मैं चालूच ना होतं ते करशील बॅक कर जा। ये बीच में कौन बोल रहा है? तेजस यादव। प्लीज बच्चों लेक्चर को डिस्टर्ब मत करो, इससे क्या हो रहा है कि आप लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। It is the amount deducted by the seller from the list price or mark price at the time of sale. It helps the retailer to sell the goods at the printed price and yet make the profit. तो जब आपका रिटेलर प्रिंटेड प्राइस से कम पे खरीदता है तो ही वो प्रॉफिट कमा पाएगा। सेल्स therefore it is not required to be recorded in the books of account। मैंने आपको समझाया जो प्रिंटेड प्राइस होती है उसको बोलते हैं मार्क प्राइस। आपका रिटेलर जो है होलसेलर या प्रोड्यूसर से मार्क प्राइस से कम पे खरीदता है तभी आपको वो मार्क प्राइस पे बेच करके कुछ प्रॉफिट कमाता है। तो मार्क प्राइस से कम पे जो खरीदता है ना और कम प्राइस जो देता है उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। जैसे मार्क प्राइस है 100 रुपया और वो 90 रुपए पे खरीदता है तो 10 रुपया क्या हो गया? ट्रेड डिस्काउंट हो गया। ठीक है। और कैश डिस्काउंट क्या होता है? इट इज अ रिबेट अलाउड फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ द ड्यू अमाउंट। कैश डिस्काउंट किस लिए दिया जाता है? आप परचेजर को इंकरेज करते हैं कि वो टाइम से आपका पेमेंट करे। इट इज द कंसेशन फॉर इंकरेजिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। इट इज एन एक्सपेंसेस। जो पार्टी इसको दे रही है उसके लिए ये खर्चा है और जिस पार्टी को ये मिल रहा है उसके लिए ये इनकम है। कैश डिस्काउंट इस डिस्काउंट को अपन बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को अपन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो डिस्काउंट बच्चों क्या हुआ? इट इज बेसिकली अ कंसेशन और अलाउंस गिवन बाय द सेलर टू द बायर। इट इज द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स। दे आर ऑफ टू टाइप्स, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। Trade discount is the amount deducted from the list price or the mark price at the time of sale. It helps the retailer to sell the goods at the printed price and yet make the profit. इस डिस्काउंट को अपन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया। और कैश डिस्काउंट क्या है? इट इज अ डिस्काउंट अलाउड टू इनकरेज टाइमली पेमेंट। टाइम से कस्टमर पैसा दे इसलिए ये डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है। What is an account? What is an account? Account is a summarized record of transaction at one place relating to particular head. अब एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं, आपको आगे जाके ये ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। अभी के लिए मैं आपको बताता हूं। जैसे आप साल भर इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करते हैं तो आपकी कैश बुक में 365 जिसमें आप कैश का पेमेंट करते हैं ना उसको कैश बुक बोलते हैं। तो कैश बुक में जैसे 365 डेज होते हैं ईयर में, तो कैश बुक में 365 पेपर पेजेस है। तो आप हर महीने के एंड में इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं तो हर महीने के 30वें पन्ने पे 30 और 60वें पन्ने पे आपको हर महीने जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं वो रिकॉर्ड होगा। आपको टोटल इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा पता करना है तो आपको बहुत सारे पेजेस टर्न करने पड़ेंगे। लेकिन अकाउंट क्या है? इट इज अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। इट इज अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। देखो इस तरह से आप मत करें बच्चों, बुक को खराब मत करें। इट इज अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा पता करना है तो इलेक्ट्रिसिटी का आपने साल भर में जितना भी पेमेंट किया है ना वो आप एक ही जगह लिख लेते हैं, उसको अकाउंट बोलते हैं। आगे जाके अपन इस चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। अब बच्चों अपन इरेजर
अच्छा, अब अपन देखते हैं, मैंने आपको समझाया था बुक कीपिंग क्या होती है. बुक कीपिंग is a recording of business transaction in the books of account in a systematic manner. All the monetary transactions are recorded date wise. It is recording of business transaction in the books of account. It is a recording of monetary transaction. Bookkeeping is both an art as well as science. अपन ने इसके फीचर्स देखे थे. आज के लेक्चर में अब जो टाइम बचा है, मैं ऑब्जेक्टिव्स देखता हूँ बुक कीपिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. The main objective of bookkeeping is to keep a complete and accurate record. आप सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहे हैं. सारी चीजें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं. तो इट इज a complete, it provides a complete and accurate record of all financial transaction in a systematic and an orderly manner. ठीक है, आपको सारे ट्रांजैक्शन जो भी आपने करे हैं वो आपको रिकॉर्ड करे हुए मिलते हैं. ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड डेट वाइज. जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते हैं आप रिकॉर्ड करते जाते हैं डेट वाइज और अकाउंट वाइज. अकाउंट वाइज का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे आप एसपी का काम होता है तो एसपी की नोटबुक में करते हैं. इंग्लिश का काम होता है तो इंग्लिश की नोटबुक में करते हैं. इकोनॉमिक्स का काम होता है तो इकोनॉमिक्स की नोटबुक में करते हैं. वैसे ही बुक कीपिंग में क्या होता है, अपन डिफरेंट तरह के अकाउंट्स बनाते हैं और जिस हेड में खर्चा होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में खर्चा हुआ तो आप इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट में लिखेंगे. वाटर एक्सपेंसेस में खर्चा हुआ तो वाटर एक्सपेंसेस में लिखेंगे. स्टेशनरी में खर्चा हुआ तो स्टेशनरी अकाउंट में लिखेंगे. ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड डेट वाइज एंड अकाउंट वाइज. Then bookkeeping serve as a permanent record. अपन सारी चीजें रिकॉर्ड करते हैं तो it serves as a permanent record of all the monetary transactions of the enterprise and it. अच्छा, अपन सारी चीजें रिकॉर्ड करते हैं तो ये बच्चों अपने आप को अनम्यूट मत करें. ठीक है बच्चों, बुक कीपिंग सर्व्स एज अ परमानेंट रिकॉर्ड. अपन सारी चीजें रिकॉर्ड करते हैं तो इट इज अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. अच्छा, अपन जब सब चीजें रिकॉर्ड करते हैं तो फ्यूचर में अपना डिस्प्यूट होता है ना, तो एक प्रोवाइड एज एन एविडेंस. एविडेंस मतलब सबूत. अपन ने कोई चीज बुक में रिकॉर्ड कर रखी है तो इट विल बी प्रोड्यूस एज ए एविडेंस. कोई मना करेगा कि आपने हमको पैसे गुड्स नहीं दिए तो आप क्या करेंगे, आपने जब उसको डिलीवरी करी होगी तो उसके सिग्नेचर लिए होंगे तो वो आपका लिए एक एविडेंस प्रोवाइड करता है. अच्छा, अपन को प्रॉफिट या लॉस का पता जब तक नहीं पड़ सकता जब तक अपन अकाउंट्स नहीं रखते हैं, अपने को प्रॉफिट एंड लॉस का पता नहीं चल सकता है. तो अपन को बुक कीपिंग करने के बाद प्रॉफिट या लॉस का पता पड़ता है. टू नो द टोटल असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज. अपन को सारे असेट्स का मतलब मैंने बताया था, चैट बॉक्स में टाइप करो असेट का क्या मतलब होता है. क्विक रिस्पॉन्स आई वांट. चैट बॉक्स में टाइप करो असेट का क्या मतलब है. चैट बॉक्स, असेट का क्या मतलब. ओके, असेट प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड ओन्ड बाय द बिजनेस. तो आपको असेट्स का पता पड़ता है और लायबिलिटीज का पता पड़ता है आपके अकाउंट्स रखने के बाद. एंड 6 is to know the business owes to other. owes मतलब बिजनेस को दूसरे को कितना देना है एंड व्हाट अदर्स ओज, दूसरों को बिजनेस को कितना देना है. उसके बाद बिजनेसमैन कम टू नो द करंट ईयर प्रोग्रेस. जब बच्चों आपका रिजल्ट बनेगा, आपके 12th के मार्कशीट दी जाएगी, तभी तो आप उसको 10th से कंपेयर करके आपकी प्रोग्रेस का जजमेंट करोगे ना. तो जब आप वो अपने रिकॉर्ड बनाते हो तो आप अपने इस साल के प्रॉफिट को प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से कंपेयर कर सकते हो. ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग था बच्चों. अपन ने फीचर्स देखे, ऑब्जेक्टिव्स देखे, और अपन इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग देखते हैं. अब अपन इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग देखते हैं. द इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग इज एज फॉलोज. ये देखिए, ये सारे पॉइंट ओवरलैपिंग है, ये रिपीटेटिव हो रहे हैं.
फीचर्स में जो चीज आई वही ऑब्जेक्टिव में भी आ रही है और वही इंपॉर्टेंस में भी आएगी और वो यूटिलिटी में आएगी। तो ये वाला डिस्कशन जो है वो काफी ओवरलैपिंग है। रिकॉर्ड, इट इज नॉट पॉसिबल अच्छा, पहला आपकी इंपॉर्टेंस क्या है कि देखिए, किसी की भी मेमोरी कितनी भी शार्प क्यों ना हो, आपकी याददाश्त कितनी भी शार्प क्यों नहीं हो, आप सारे ट्रांजैक्शन को रिमेंबर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आप रिकॉर्ड रखते हैं तो बुक कीपिंग मेंटेन्स परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। लेकिन बुक कीपिंग में सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं तो ये आपका एक परमानेंट रिकॉर्ड रहता है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, bookkeeping is useful to get the information related to profit, loss, liabilities। अपन को बुक कीपिंग करने के बाद प्रॉफिट लॉस का पता पड़ता है, असेट लाइबिलिटी का पता पड़ता है, आपके पास कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना स्टॉक है, इस बात का पता पड़ता है। डिसीजन मेकिंग, आपको आपका प्रॉफिट का पता पड़ा या आपको आपके लॉस का पता पड़ा तो आप इंप्रूव करने के लिए कुछ डिसीजन लेना चाहेंगे। तो बुक कीपिंग प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आपकी जब मार्कशीट बनती है तो आपको आपके नंबर्स पता पड़ते हैं और नंबर्स पता पड़ते हैं तो जिसमें कम नंबर आए उसमें आप ज्यादा मेहनत करते हैं। तो उसी तरीके से बुक कीपिंग प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द बिजनेस फॉर डिसीजन मेकिंग। देन उसके बाद डिसीजन मेकिंग, आप बुक कीपिंग की हेल्प से डिसीजन ले सकते हैं। देन कंट्रोलिंग, बुक कीपिंग इनेबल्स द एग्जीक्यूटिव टू कंट्रोल द बिजनेस। आपकी सारी इंफॉर्मेशन टॉप मैनेजमेंट को मिलती है तो वो क्या करते हैं, बिजनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। देन एविडेंस, मैंने आपको अभी बताया था कि बुक कीपिंग से आपको सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं तो इट कैन बी प्रोड्यूस एज अ एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। फिर बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स लायबिलिटी का। देखिए, गवर्नमेंट क्या है, आपसे टैक्सेस कलेक्ट करती है। तो गवर्नमेंट टैक्सेस किस बेसिस पे कलेक्ट करती है, आपके प्रॉफिट के बेसिस के ऊपर। तो जब तक आप बुक कीपिंग नहीं करोगे आपको प्रॉफिट का पता नहीं पड़ेगा। आपको जब तक प्रॉफिट का पता नहीं पड़ेगा और गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट नहीं कर सकते, आपको पता नहीं होगा कि आपको गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है। तो बुक कीपिंग इज यूजफुल टू फाइंड आउट द टैक्स लायबिलिटी। अच्छा, आप प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकते हो, आपको प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराना होता है, लेकिन जब तक आपको आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू पता नहीं है तब तक। यस मिस मैडम, अब मैं एडमिट ऑल कहां से करूं, इधर से बताइए आप मेरे को। मैं गया, मैंने कईयों को एडमिट करा मैडम, लेकिन केवल एडमिट ही करता रहूं तो मैं लेक्चर, पहले 90 बच्चे थे, अभी कुछ नेटवर्क हो गया या कुछ छोड़ के चले गए, अभी 70 है, तो कैसे मैं एडमिट करूंगा, तो कैसे मैं फिर लेक्चर लूंगा मिस। तो मुझे मैं ठीक है मिस, मैं 10-10 मिनट में देखता हूँ फिर, ठीक है ठीक है। अच्छा, तो बच्चों मैंने आपको बताया ना, आपको आपकी टैक्स लायबिलिटी का पता पड़ता है। फिर अब नेक्स्ट है यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग। अच्छा, बुक कीपिंग की क्या यूटिलिटी है बच्चों, जो अपन ने पॉइंट्स, बच्चों जो अपन ने पॉइंट जो अपन ने पॉइंट अभी ऊपर देखे है ना, वो के वही सारे पॉइंट अपने जो भी अपन ने पॉइंट अभी ऊपर देखे थे वो सारे के सारे पॉइंट ही आपके इसमें भी आएंगे यूटिलिटी में। बुक कीपिंग की यूटिलिटी क्या है, अच्छा देखो, ओनर के लिए क्या है, उसको प्रॉफिट या लॉस का पता पड़ता है, असेट और लायबिलिटी का पता पड़ता है, ठीक है, ये ओनर को उसकी यूटिलिटी है। मैनेजमेंट को क्या है, उसको बुक कीपिंग से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको जब बुक कीपिंग से इंफॉर्मेशन मिलती है
तो वो प्लान कर सकता है, डिसीजन ले सकता है और ओवरऑल बिजनेस को कंट्रोल कर सकता है। अच्छा, इन्वेस्टर को क्या यूटिलिटी है? देखिए, आप कहीं पे भी पैसा लगाते हैं तो आप वहीं पे पैसा लगाएंगे जहां से आपको प्रॉफिट होगा। तो बुक कीपिंग से क्या है, आपको प्रॉफिट का, आपको क्या है, इन्वेस्टर को बुक कीपिंग करेंगे तो प्रॉफिट या लॉस का पता पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का पता पड़ेगा तो इन्वेस्टर वही पैसा लगाएगा जहां पे प्रॉफिट होगा। तो इन्वेस्टर को डिसीजन लेने में आसानी होगी। कस्टमर कैन इजीली अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, देखिए, आप कोई भी जैसे लैपटॉप खरीदते हैं या कोई भी मोबाइल खरीदते हैं, अगर कंपनी की पोजीशन अच्छी होगी, अगर कंपनी की पोजीशन अच्छी होगी, देखो इस तरीके से बदतमीजी आप बच्चों करोगे ना तो आपका नुकसान है यहाँ पे, और किसी का कोई नुकसान नहीं है। आप स्क्रीन में इस तरह का काम करेंगे, yeah, we were at investor will be able to take the, करते जाइए आप, मैं आपका यही काम करता जाऊंगा, आपका पढ़ाई का नुकसान होगा। देखो, अपने पिछले लेक्चर कितने अच्छे गए थे। अब आप लोग, अगर ये आपको करना है तमाशा, आप ये करिए। प्लीज बच्चों, थोड़ा सा बिहेव करिए डिसिप्लिन वे में। या इन्वेस्टर को क्या पता पड़ेगा? अच्छा, अपन कस्टमर पे थे, तो आप किसी कंपनी का लैपटॉप या मोबाइल खरीदते हैं, अगर कंपनी का प्रॉफिट अच्छा होगा, मतलब कंपनी कंटिन्यू कर रही है, लॉस में कोई कंपनी कंटिन्यू नहीं कर पाएगी, तो कंपनी की फाइनेंशियल अकाउंट देख करके कस्टमर को पता पड़ेगा कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, मतलब कंपनी चलती रहेगी। तो कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कस्टमर को ये तसल्ली रहेगी, कस्टमर को कॉन्फिडेंस रहेगा कि मेरे को इसके स्पेयर पार्ट्स मिलते रहेंगे, तो उसको वो प्रोडक्ट खरीदने में आसानी होगी। गवर्नमेंट कैन इजीली फाइंड आउट। अच्छा, अब जब बिजनेसमैन बुक कीपिंग या अकाउंट्स रखेगा तो उसका प्रॉफिट या लॉस का पता पड़ेगा। जब उसको प्रॉफिट या लॉस का पता पड़ेगा तो क्या होगा, वो गवर्नमेंट को आसानी से डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस पे कर पाएगा, वो गवर्नमेंट को डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस पे कर पाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट को आसानी से पता पड़ेगा कि मेरे को किससे कितना टैक्स कलेक्ट करना है। देन लेंडर। अच्छा, लेंडर मतलब जो आपको पैसा प्रोवाइड करता है, जो आपका क्रेडिटर है, जो आपको उधार पे पैसा या गुड्स देता है। अगर कोई भी मनी लेंडर है तो उसको क्या तसल्ली होनी चाहिए कि जो भी मैंने उधार दिया है वो मेरे को पैसा वापस मिलेगा। तो ये उसको कैसा पता पड़ेगा? कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देख करके ही उसको पता पड़ेगा कि मेरे को मेरा पैसा वापस मिल पाएगा। अगर कंपनी प्रॉफिट में होगी, कंपनी अच्छी चल रही होगी, तो वो कंपनी को क्या बोलता है? टेक्निकल वर्ड लिखिए, टेक्निकल वर्ड लिखिए, क्या बोलते हैं उस कंपनी को? एक मैंने आपको टर्म समझाया था, सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। तो अगर कंपनी सॉल्वेंट है, वो अपने डेट्स को पे कर सकती है, तो लेंडर को कॉन्फिडेंस रहेगा और लेंडर अपना पैसा प्रोवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, डेवलपमेंट। आपको बिजनेस बुक कीपिंग के अकाउंट्स के डिफरेंट बेनिफिट्स हैं, तो आपको डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। जब आपको डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी तो आप R&D करके, रिसर्च करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकेंगे, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकेंगे। तो ये आपका डेवलपमेंट एक्सपेक्ट हो गया। अब आपका ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। देखिए, ये आपके बीकॉम एमकॉम लेवल तक चलेगा कि बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में क्या, अकाउंटेंसी में क्या फर्क है। देखिए बच्चों, जनरली बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी को, अकाउंटिंग को एक ही समझा जाता है, लेकिन ये एक नहीं है, इनमें बहुत सारा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो तो अपन देखते हैं। देखो, बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है बच्चों?
It is recording of business transaction, monetary transaction in the books of accounts. Accounting क्या है? Accounting is related with recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting the financial data. Accounting का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड करना. तो ये तो अपन ने बुक कीपिंग में भी देखा था. क्लासीफाई करना, क्लासीफाई का मतलब क्या होता है? एक तरह की चीजों को एक ही जगह इकट्ठा करना, इसको बोलते हैं क्लासीफाई. सेम टाइप की चीजों को एक ही जगह इकट्ठा करना, इसको बोलते हैं क्लासीफाई. समराइजिंग का मतलब क्या होता है? आप सब लोग जानते हैं. जो भी आपने डिटेल इंफॉर्मेशन है उसके मेन पॉइंट्स बनाना, उसको समराइज कहते हैं. एनालाइज का मतलब क्या होता है? एनालाइजिंग का मतलब होता है डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ द एलिमेंट. कोई भी चीज का डिटेल्ड एग्जामिनेशन करना या उस चीज का क्या स्ट्रक्चर है इसको अच्छी तरीके से समझना, उसको एनालिसिस बोलते हैं. अभी मैं आपको इसका एग्जाम्पल से एक एक चीज का मतलब समझाऊंगा. देखिए, अकाउंटिंग क्या होती है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग. मैंने आपको समझाया. डिटेल हर चीज का डिटेल्ड स्टडी करना, उसका स्ट्रक्चर को डिटेल स्टडी करना. इंटरप्रेटिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है टू ड्रॉ इन्फ्रेंसेस, टू ड्रॉ कंक्लूजन. आपने जो भी स्टडी किया है उसका कंक्लूजन निकालना, उसको बोलते हैं इंटरप्रेटिंग. क्या बोलते हैं? इंटरप्रेटिंग. तो अपन ने बुक कीपिंग का मतलब देखा, अकाउंटिंग का मतलब देखा, और अब अपन अकाउंटेंसी का मतलब देखते हैं. अकाउंटेंसी रेफर टू द एंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग. ये क्या है? ये पूरा का पूरा जो आपकी थ्योरी है उसको भी इंक्लूड करता है अकाउंटेंसी में, और इसको अप्लाई कैसे करते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, इनको अप्लाई कैसे करते हैं उसको बोलते हैं प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग. तो अकाउंटेंसी का मतलब होता है पूरा थ्योरी और उसकी प्रैक्टिस. जो भी आपने थ्योरी में पढ़ा है उसको अप्लाई कैसा करना, उसको बोलते हैं अकाउंटेंसी. तो अपन ने 3 बेसिक टर्म समझे. बुक कीपिंग, ये चार्ट के हेल्प से अपन समझते हैं. देखो, अकाउंटेंसी ब्रॉडर कंसेप्ट है, अकाउंटिंग उससे छोटा कंसेप्ट है, और बुक कीपिंग उससे भी नैरो कंसेप्ट है. तो मतलब अकाउंटेंसी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों को इंक्लूड करती है, और अकाउंटिंग जो है वो बुक कीपिंग को इंक्लूड करती है. अब अपन डिफरेंस समझते हैं कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या क्या डिफरेंस है. बुक कीपिंग में क्या होता है? केवल रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है. इसमें क्या होता है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड द फाइनेंशियल डेटा. तो ये एक एक वर्ड का मैंने मतलब आपको समझाया है. रिकॉर्डिंग का मतलब बुक में एंटर करना, लिखना. क्लासिफाई का मतलब सिमिलर चीज को एक जगह इकट्ठा करना. समराइज का मतलब आपको इंपॉर्टेंट चीजों को शॉर्ट में लिखना, जो कुछ आपने डिटेल पढ़ा है उसका समरी बनाना, उसका शॉर्ट में प्रेजेंट करना. एनालाइज का मतलब है डिटेल कंपोनेंट में स्टडी करना, उसका स्ट्रक्चर देखना. और इंटरप्रेटिंग का मतलब आपको उससे इन्फरेंस निकालना, उससे डिसीजन निकालना. उसके बाद है आपका बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज. पहले बुक कीपिंग का काम होता है, उसके बाद सेकेंडरी स्टेज होती है अकाउंटेंसी की. ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है पूरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना इन अ प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक मैनर. और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये तो है ही है. उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना और उन रिजल्ट को कम्युनिकेट करना. ठीक है बच्चों, अभी 2-4 मिनट बचे हैं. अपन थोड़ा सा आज बीच में डिस्टर्बेंस और डिले भी हुआ, तो लेट अस कंटिन्यू. उसके बाद जूनियर स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर. हाँ बोलिए.
जूनियर स्टाफ रिस्पॉन्सिबल फॉर बुक कीपिंग और यहाँ पे सीनियर स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी। फिर बुक कीपिंग बेसिकली रिजल्ट इन जनरल एंड लेजर। ये अपन आने वाले इनके ऊपर अपने पूरे एक एक चैप्टर हैं कि बुक कीपिंग से आपको जनरल बनाना सीखते हैं और लेजर बनाना सीखते हैं और अकाउंटेंसी में आप प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाना सीखते हैं। बुक कीपिंग आपको डे टू डे डिटेल देता है, अकाउंटेंसी आपको पूरे साल भर की डिटेल देता है। Bookkeeping does not require any analysis, but accountancy require analysis and interpretation. इनका मतलब मैं आपको बता चुका हूं। ये बुक कीपिंग के बेस पे मैनेजमेंट कोई डिसीजन नहीं ले सकता, जबकि अकाउंटिंग आपकी डिसीजन लेने में हेल्प करती है। एनालिटिकल स्किल इज नॉट रिक्वायर्ड इन बुक कीपिंग, जबकि आपके अकाउंटेंसी में एनालिटिकल स्किल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये मैंने आपको मतलब समझाया। वैसे करेक्ट वर्ड यहाँ पे अकाउंटिंग आना चाहिए। आपकी बुक ने इस वर्ड को वेरी लूजली या गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। करेक्ट वर्ड यहाँ पे अकाउंटिंग आना चाहिए। तो बच्चों आपने देखा आज अपन ने जो डील करा है, दो चार इंपॉर्टेंट टर्म्स अपन ने डील करे थे। उसके बाद अपन ने जो देखा है वो देखा है अपन ने ऑब्जेक्टिव क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, यूटिलिटी क्या है और डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो ये सारी चीजें आप लोग अपने नोटबुक में लिखें। ये मैंने आपको आपके टेक्स्ट बुक में से पढ़ा है बच्चों। सो आपके कोई डाउट्स हो तो प्लीज आप लोग बताएं मेरे को। अगर डाउट्स नहीं है आप लोग के अगर डाउट्स है तो अपने आप को अनम्यूट करके मेरे से डाउट पूछें, और नहीं तो आप लोग अब ग्रुप को लीव कर सकते हैं प्लीज। Sir, we have to write something in एक जना notebook. क्या बोल रहे हैं बच्चों? नोटबुक बनानी है ना बेटा? We have to write something in that. Definitely you have to write something in the daily after the lecture. I tell you what would you all have to write. Okay. और कोई डाउट किसी को पूछना हो तो बताइए। Sir, हाँ, objective बता दीजिए. ऑब्जेक्टिव किसका ऑब्जेक्टिव बताऊं मैं आपको बेटा? Excuse me, sir. Bookkeeping और accountancy का. बेटा ये मैंने आपको बताया ना, बुक में मैंने आपको समझाया ना डिटेल में। ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना व्हाट। बच्चों आप अपने आप को अनम्यूट नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिव है ना आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 2 के ऊपर ही है बेटा। पेज नंबर 2 के ऊपर ये इतने सारे पॉइंट है ना, मैंने आपको 1 पॉइंट समझाया ना बेटा। यस और कोई? सर 200 पेज का बुक बनाना है। हाँ आप 200 का भी बना सकते हैं, 150 का भी बना सकते हैं, आपको जैसे कन्वीनियंट हो। कम से कम 100 पेज का बुक बनाइए, पूरे 200 पेज काम में आ जाएंगे। अच्छा आपको क्या क्या लिखना है आप नोट करिए। देखिए मैंने आपको शुरू के लेक्चर में, प्लीज आपने आपको अनम्यूट न करें पार्टिसिपेंट्स। देखिए मैंने आपको सर्टेन टर्म्स बताए थे, मैं फटाफट रिपीट करता हूं। एंट्री, नरेशन, गुड्स, कैपिटल, ड्राइंग, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैड डेट, असेट। फिक्स्ड असेट कितने टाइप के होते हैं? फिक्स, करंट, फिक्टिशियस। उसके बाद मैंने आपको लाइबिलिटीज बताया, फिक्स लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, नेटवर्थ, कंटीजेंट लाइबिलिटी, एक्सपेंडिचर, कैपिटल, रेवेन्यू, डेफर्ड, कैश डिस्काउंट मैंने आज समझाया, कैश डिस्काउंट समझाया, सॉल्वेंट क्या होता है, इंसॉल्वेंट क्या होता है, अकाउंटिंग ईयर, ट्रेडिंग कंसर्न, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, गुडविल, प्रॉफिट लॉस, इनकम, रेवेन्यू, ये मैंने आज डिस्कस करा। ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग डिस्कस करा, इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग डिस्कस करा, यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग डिस्कस किया, और बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का मतलब बताया, और बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस बताया। तो देखिए पेज नंबर 1 से लेकर के मैंने आपको आपकी टेक्स्ट बुक में ये सब जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, केवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। उसके बाद ये सारे टर्म्स पेज नंबर 6 से लेकर के पेज नंबर 9,
पेज नंबर 10 तक मैंने आपको बताया है, पेज नंबर 10 तक मैंने आपको बताया है, और बीच का थोड़ा सा पार्ट करके अगले लेक्चर में अपन आगे की डिस्कशन करेंगे। प्लीज, और कोई डाउट किसी को? Excuse me, sir. हाँ बोलिए बेटा। Can you please explain trade discount again? बेटा ट्रेड डिस्काउंट मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। एग्जाम्पल, अब आप ध्यान से सुनना। आप कोई भी चीज खरीदी, जैसे आपने फैन खरीदा, क्या खरीदा? फैन। क्या खरीदा? फैन खरीदा। फैन के ऊपर उसकी प्राइस लिखी हुई है बेटा 1000 रुपए। कितनी लिखी हुई है? 1000 रुपए। 1000। तो एक मिनट, आप 1000 रुपीज से ज्यादा बेटा, ये आपके कौन दोस्त, देखो अब ये इस तरह की बदतमीजी करते हैं ना तो पूरा पढ़ाई का मजा बिगड़ जाता है। नेक्स्ट बार हम लोग ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करके बाहर निकालेंगे। अच्छा हाँ, तो बच्चों बेटा आपने पूछा मैं, अच्छा अगर फैन की प्राइस 1000 रुपीज है तो आप उसका ज्यादा पैसा देंगे क्या बेटा? नहीं देंगे ना। तो अगर रिटेलर अगर उसको 1000 रुपए में खरीदेगा और 1000 रुपए में बेचेगा तो उसको कुछ प्रॉफिट मिलेगा क्या? तो रिटेलर क्या करता है, प्रोड्यूसर से जो 1000 रुपया, सपोज करो उसने 900 रुपए में खरीदा, तो मार्क प्राइस से उसने कम पैसा दिया, उसने मार्क प्राइस 1000 रुपया है, उसने मार्क प्राइस से कम पैसा दिया, तो उसने जो मार्क प्राइस से कम पैसा दिया ना उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पे उसने मार्क प्राइस से कम में 900 रुपए में खरीदा, तो ये 100 रुपया क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। अब ये समझ में आया बेटा? हेलो हेलो, हाँ सर। समझ में आया? ट्रेड डिस्काउंट से क्या होता है कि रिटेलर उसको मार्क प्राइस पे, मार्क प्राइस का मतलब क्या होता है? जो छपी हुई प्राइस है उसके ऊपर बेच पाता है और प्रॉफिट कमा पाता है। एनी अदर डाउट? नो सर। और कोई? Thank you. हाँ बोलिए बेटा, बोलिए। हाँ बोलिए सर। नोटबुक में क्या लिखना है? बेटा अभी मैंने आपको बताया था ना, अभी मैंने आपको बताया था ना कि क्या लिखना है। सर पास्ट। मैंने आपको बताया था ना बेटा अभी क्या लिखना है नोटबुक में। अच्छा आप ऐसा करो, बोला कि एक्सप्लेन क्या किया था, वो नहीं बोला था कि आपको लिखना क्या। एक्सप्लेन किया वो सब लिखना है ना बेटा, वो मैंने एक्सप्लेन किया है ना, वो सारी चीजें आपको नोटबुक में लिखनी है। एनी स्टिल यू हैव डाउट? नो। मैं आपको चैट बॉक्स में लिख देता हूं, यू हैव जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा है वो आपको लिखना है। पेज 6 to 9, और ये पेज मैं खोलता हूं, ये भी तो बेटा मैंने आपको समझाया है ना, ये भी मैं आपको शुरू से जाके बताता हूं। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम बट स्टिल आप लोगों का इंटरेस्ट है तो मैं बता रहा हूं। देखिए Bookkeeping and account. ये आपको पेज नंबर देखिए, ये आपको पेज नंबर 2 से लेकर के अपन ने पेज नंबर 2 डिस्कस करा, पेज नंबर 3 डिस्कस करा, पेज नंबर 4 डिस्कस करा बच्चों, और पेज नंबर 4 डिस्कस करा है। 2 से लेकर के पेज नंबर 4 आपको लिखना है। उसके बाद ये अपन ने अभी डिस्कस नहीं करा, देन पेज नंबर 6 से लेकर के ये अपन ने डिस्कस नहीं, पेज नंबर 6 से लेकर के 6 में आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी से 1.7 से लेकर के आपको पेज नंबर 9 तक लिखना है। पेज नंबर 9 आपको पेज नंबर 9 तक लिखना है, और ये भी लिखना है BCD। उसके बाद ये भी लिखना है एसेट, पेज नंबर 10 तक लिखना है, पेज नंबर 10, और ये भी अपन ने कवर करा है कंटिजेंट लायबिलिटी तक, यहां तक आपको लिखना है। पेज नंबर 6 से लेकर के पेज नंबर 11 तक जो भी अपन ने डिस्कस करा है वो आपको लिखना है। स्टिल एनी डाउट?
नो सर थैंक यू। सर हमें No, सिर्फ sir. टॉपिक लिखना है या जो भी एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट बुक में दिया है वो लिखना है? देखो बच्चों, जो भी मैंने आपको जब मैं पढ़ा रहा था, मैंने अपने आपको मेरे नोट्स बताए थे, मैंने आप लोगों को बोला था इसके स्क्रीनशॉट ले लो, तो वो क्या इजी लैंग्वेज में नोट्स थे, तो वो आपको या तो बुक की लैंग्वेज आपको इजी लगती है तो वो, नहीं तो मैंने आपको इजी लैंग्वेज में जो बताया है वो आपको लिखना है। ओके सर। ठीक है, ताकि आपको वो याद रह सके। और बोलिए बच्चों, एनी अदर पॉइंट? नो सर, थैंक यू। चलिए अब आप ग्रुप छोड़िए, मैं मीटिंग खत्म करता हूँ। ठीक है, नाउ आई एम क्लोजिंग द मीटिंग। प्लीज बच्चों आप लोग प्लीज लीव द मीटिंग। आई एम क्लोजिंग द मीट। Students, kindly leave the meeting.